हमने अभी देखा किस तरह से पॉइस्चर ने एक्सपेरिमेंट किया एंड इज डिसप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कैसे किया था उसने? बाय टेकिंग द फ्लास्क, और उस फ्लास्क में उसने यीस्ट और शुगर का एक्सट्रैक्ट डाला, उसको बॉयल किया, स्टरलाइज किया अच्छे से। तो व्हाट वाज हैपेंड, कवर्ड फ्लास्क में तो नो लाइफ वाज देयर, बट व्हेन द फ्लास्क नेक ऑफ द फ्लास्क वाज ब्रोकन देन लाइफ अपीयर्ड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और प्रोटेस्ट, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, दे वर सीन इन दोज फ्लास्क, in broken flask, and he concluded that life always arises from pre-existing life. तो ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने भी फेवर किया किसको? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को, यानी कि स्मॉल स्केल पे स्पॉन्टेनियस को रिजेक्ट किया। उसके बाद आए ओपरेन एंड हिल्डन थ्योरी, विच इज फॉर्मिंग थ्योरी ऑफ व्हाट वी कैन से बायोजेनेसिस, कीमोजेनेसिस भी कह सकते हैं, थ्योरी of abiogenesis. Chemogenesis is also there. Chemogenesis means chemical combination of reactions that we can say, and it was proposed by, बहुत famous theory है, Oparin of Russia and Halden of England. Halden of England. They proposed this theory. This theory was theory of abiogenesis, and they also formulated, both of them, they told about this theory that the life was started from some inorganic material by a series of chemical combinations, or we can say chemical evolution was there. Chemical combination of reactions were possible during the primitive environment. So what was the main what we can say extract of this theory was the life originated from non-living matter such as inorganic material, or what was present during the primitive time on primitive earth, on from non-living matter slowly by a series of chemical reactions or chemical evolution these reactions were addition reactions, polymerization reactions, or oxidation reduction reactions. What kind of reactions were possible during that time? Addition reactions, polymerization, or we can say redox, oxidation reduction. But one should keep in mind, during that time on the primitive earth, oxygen was not there. Most abundant were, what was there? Methane was present, nitrogen in the form of ammonia, water in the form, water vapors, and oxygen was in combined form. All these reactions, these chemical compounds were present during that time. And hydrogen was also abundant, hydrogen be present thi, and this together they form the reducing environment, reducing earth we can say, in which oxygen was absent or no another microorganisms, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं आजकल रोटन और डिकेइंग मैटर को, दे वर ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज लाइफ वाज नॉट देयर. तो दैट इज वाई सच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस वर पॉसिबल. धीरे धीरे होती चली गई क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी जो इनको ऑक्सीडाइज कर सके, या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था जो इनको ऑक्सीडाइज कर सके. एंड स्लोली एंड स्टीडली ऑल ऑफ दीज मिनरल्स, व्हाट डिड दे फॉर्म? सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स such as first of all glycine, और अमीनो एसिड्स बने थे सबसे पहले. ग्लाइसिन was formed first of all. अमीनो एसिड such as glycine, alanine, glutamic acid, we are all familiar with this. अमीनो एसिड्स बहुत बार आते हैं ये. aspartic acids, they are important
components of proteins, they were formed first. ये सबसे पहले बने on the reducing environment और primitive earth that was occurring near about कहाँ पे 4000 millions of years ago on the primitive earth when the earth was formed. As I told you, जैसे ही earth बनी थी तो the temperature on the earth was near about 100 degrees Celsius. तो ये सब gases were present, ये सब थे और slowly and steadily when the earth cooled down more, जब बहुत थोड़ी सी ठंडी हुई तो उसमें कुछ इरप्शंस थी, जैसे कि उसमें कुछ एलिवेशंस और डिप्रेशंस थी प्रोड्यूस हुई, उन डिप्रेशंस में वाटर एक्यूमुलेट हुआ. ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ ना, किस तरह से वाटर एक्यूमुलेट हुआ और ओशियंस वर फॉर्म एंड दीज ओशियंस वर सुटेबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस. और जितने भी ये केमिकल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे उस वक्त, दे स्टार्टेड कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द सिंपल केमिकल कंपाउंड्स, organic compounds that were called the glycine, alanine, glutamic acids. So in this manner, after some time what happened, slowly and steadily these organic compounds again combined with each other and these reactions continued, combined होते चले गए, addition reactions, polymerization continued for millions of years ago. बहुत लाखों, ऐसा नहीं है कि एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन में 20-21 दिन के बाद या थोड़े समय के बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं था. थोड़े बहुत स्लो रिएक्शंस हो रही थी और जो अर्थ का ओशियन था उस पर ये रिएक्शन पॉसिबल थी. मडी बॉटम था और दिस रिएक्शंस वर पॉसिबल एंड दे स्लोली एंड स्टिलली दे वर फॉर्मिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड. फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने इन्हीं की कॉम्बिनेशन से, जैसे कि ये अमीनो एसिड बने, इनमें कुछ सिंपल शुगर्स भी बनी और हम कह सकते हैं एल्डिहाइड बने, अल्कोहल बने, एल्डिहाइड, ये सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप तो सब जानते ही हो. तो ये all these were in the form of simple organic compound and then when they started again with each other then complex polysaccharides, complex sugar बननी शुरू हो गई और वी कैन से कॉम्प्लेक्स शुगर बनी. न्यूक्लियोटाइड्स में जैसे कि हम कह सकते हैं प्यूरिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, प्यूरिन, पायरामिडीन्स, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये सब बने. कुछ प्रोटीन्स बने, कार्बोहाइड्रेट्स बनने शुरू हो गए. तो ऑल दीज वर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर ऑल फॉर्म्ड इनसाइड अवर और इन द लिविंग बॉडी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही सब कुछ मिलता है. तो जैसे जैसे ये बना द ओशियन मड वाज ए हॉट डिल्यूट सूप लाइक स्ट्रक्चर. जैसे थिक सूप होता है ना, तो ओशियन का मड भी ऐसे एक डिल्यूट सूप लाइक स्ट्रक्चर सा बन गया एंड दैट वाज फेवरिंग द पॉसिबल रिएक्शंस फर्दर. वो फर्दर कैसे होती हैं वो तो हम देखेंगे बाद में. तो इस तरह से एक हॉट डिल्यूट सूप लाइक स्ट्रक्चर वाज फॉर्म. ठीक है, और इसको इन सब पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को एनर्जी तो चाहिए ही. तो उस वक्त के एनवायरनमेंट में जैसे कि व्हाट वाज वेपन, सन्स की रेडिएशंस थी, सन्स की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, थंडरिंग एंड लाइटनिंग, बिजली कड़कती थी, थंडरिंग एंड लाइटनिंग एंड उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस, ऑल दे वर गिविंग प्रोवाइडिंग द एनर्जी. Later on ATP was also giving, ATPs and pyrophosphates, they were also giving the energy to these chemical combination reactions later on जब ATP की formation हुई. Light thundering and lightning, volcanic eruptions, all they were providing the energy. ये सब से उनको एनर्जी मिल रही थी इन केमिकल रिएक्शंस को. ATPs भी बाद में आ गए, पायरोफॉस्फेट भी एनर्जी रिच करेंसीज हैं सारे के सारे. पायरोफॉस्फेट्स, ऑल दे वर गिविंग द एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. तो ओपरेन एंड होल्डन ने कहा कि this theory was firstly abiogenetic and later on biogenetic. जैसे कि फर्स्ट सेल आई और उसके बाद नेक्स्ट लाइफ फॉर्म्स दे स्टार्टेड, यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज स्टार्टिंग. लेकिन जैसे कि फर्स्ट लाइफ आ रही है उसकी ओरिजिनेशन कैसे हो रही है, बाय सीरीज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस. एंड दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड एंड लेटर ऑन देयर वर टू मोर साइंटिस्ट, मिलर एंड यूरे, स्टेनले मिलर एंड हेरल्ड यूरे. They also provided supported this theory, and Harold Urey
experiment is very famous to prove the theory of abiogenesis. उन्होंने lab conditions में क्या किया, what did they do, यही experiment किया, they took this ammonia, methane and hydrogen in 2:2:1 ratio में लिया, इसको एक स्पार्क, एक कंडेंस फ्लास्क के अंदर लिया और इलेक्ट्रोड से उन्होंने नियर अबाउट 7500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि आर्टिफिशियली इनको एनर्जी प्रोवाइड की गई, गैसेस रखी गई और उसके साथ एक कंडेंसर का सिस्टम फिट किया गया एंड देयर वाज ए हॉट वाटर टू सप्लाई. हॉट वाटर वाज आल्सो देयर for the process of reaction, so that reaction could be proceeded with ease in the water medium. और ये सब कंडीशंस जो थी ना, ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट थी जैसे कि उस कंडीशन में भी, तो इसमें भी इवैक्यूएटेड कंडीशन से, यानी कि ऑक्सीजन टोटली रिमूव कर दी गई, ऑक्सीजन एब्सेंट, स्टरलाइज कंडीशन दी गई ताकि ये जो केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, तो इसमें ये वॉट एवर वी कैन से, वॉट एवर दे वांटेड टू स्टडी, कि जो भी ये साइंटिस्ट ने बोला है वो सच है या नहीं है, यानी कि वेदर इट इज ट्रू. एबायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए मिलर एंड यूले ने द सेम एक्सपेरिमेंट लैब कंडीशन में किया. क्या लिया उन्होंने, एक फ्लास्क में जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किया अलोंग विद दीज कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक जितने भी ये कंपाउंड्स थे जो उस वक्त प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट थे, द सेम वर टेकन इनटू द फ्लास्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क वाज गिवन इन द टू गिव द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए. और इस तरह से व्हाट वाज टेम्परेचर वाज केप्ट नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहा था ताकि ये रिएक्शंस पॉसिबल हो. हॉट वाटर मीडियम प्रोवाइड किया गया एंड व्हेन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हेन आफ्टर 15 to some 20 days what was given, glycine was found to form, अमीनो एसिड बना हुआ नजर आया. तो फिर वो किस तरह से कंडेंसर से उनको पास किया गया. कंडेंसर में व्हाट हैपेंड, कोल्ड वाटर को नीचे से डाला जाता था और वो कोल्ड वाटर गर्म हो जाता था और उसमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे दे वर कमिंग डाउन, वो तो नीचे आ रहे थे, वो सब सॉलिड हॉट वाटर के अंदर एकदम से इनसॉल्युबल हो जाते हैं ना, पहले तो सॉल्युबल फॉर्म में, हॉट वाटर की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे एंड दे वर कमिंग डाउन एंड दे वर इवैल्यूएटेड. उनको टाइम टू टाइम निकाला गया ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, जैसे कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऊपर बने ना, तो उनको निकाल कर टेस्ट किया गया व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दीज कंपोनेंट, कि क्या है इन नेचर की. तो इस कंडेंसर से तो उनको कंडेंस किया गया, जहाँ से नीचे से ठंडा पानी, और वो पानी जैसे ही गर्म होता था उसको बाहर निकाल देते थे, फिर कोल्ड वाटर नीचे से सप्लाई करते थे सो दैट दीज कुड बी सॉलिडिफाइड, सो दैट दे कुड बी एनालाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. यहाँ से इनको एनालाइज किया गया एंड द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दे वर फाउंड, वो मिल गए एंड दे ऑल्सो प्रूव दिस थ्योरी. एंड लेटर ऑन व्हाट वाज देयर, मीटियोराइट कंपोनेंट भी लिए गए स्पेस से. कुछ मीटियोराइट कंपोनेंट्स का जब मटेरियल चेक किया ना, दे वर फाउंड सिमिलर टू, मीटियोराइट कंपोनेंट्स वर सिमिलर टू दीज कंपोनेंट. तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट वाज इट्स कंक्लूजन, कि द सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस वर टेकिंग प्लेस इन द स्पेस, इन द अदर प्लेसेस ऑल्सो, अदर कंडीशंस पे भी मीटियोराइट कंपोनेंट जहाँ से भी लिया गया वहाँ पे भी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिससे कि ये कंक्लूड किया गया सच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर पॉसिबल. और पॉसिबल क्यों हुई, इन टोटली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रीवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अनदर माइक्रोब्स टोटली एब्सेंट थे, नो ऑक्सीडेशन वाज देयर. तो इस तरह से दिस थ्योरी वाज प्रोड्यूस्ड. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये फर्दर फर्स्ट नॉन सेलुलर एंड देन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वाज स्टार्टेड. बुक में लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, इन व्हाट मैनर ऑल दिस वर फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ वाज स्टार्टेड नियर अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स एगो. वो कैसे पॉसिबल हुआ, दैट वी सी आफ्टर दिस, क्योंकि बुक में इसके बाद मेंशन नहीं किया गया. तो वो हम देखेंगे ये केमिकल कंपाउंड किस तरह से एक लाइफ का और एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं, कैसे सेल मेम्ब्रेन बनी, कैसे न्यूक्लियस बना, वो हम देखते हैं.